Good morning everyone and welcome to the class. Today we will start our second chapter. The name of the chapter is The End of Bipolarity. The end of bipolarity, what does it mean? We have discussed in the first chapter that after the end of the Second World War, two superpowers emerged in the world politics. They were US and USSR, and between these two superpowers there was rivalry, competition and conflict, and all these led to the starting of the Cold War between them. But what we find that in the year 1991, a major development takes place in the world politics, and that is the disintegration of the USSR. And with the disintegration of the USSR, what happens? That the world, which was bipolar, it turns unipolar. है ना? जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर वर्ल्ड में बदल गया, बिकॉज जब बाइपोलर वर्ल्ड हम देख रहे हैं तो उस समय यूएस और यूएसएसआर है ना, और जब यूएसएसआर का एंड हो जाता है देयर वाज नो मोर यूएसएसआर, इट मींस कि ओनली यूएस वाज देयर एंड दिस यूएस इज द यूनिपोलर वर्ल्ड, जबकि वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रह गया. तो ये है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग the complete process. What was the Soviet system? What were the features of the Soviet system? What were the loopholes of the Soviet system? What efforts were made to bring improvement in the Soviet system? Still, we will see that some events took place which were responsible for the disintegration of the USSR, and thus we will discuss the process of disintegration, the causes of disintegration, then the consequences of disintegration. And with this we will also discuss one of the most important event which occurred after this disintegration of USSR, and that is shock therapy. Okay, so what shock therapy was, how shock therapy was brought about in the free countries of USSR, and what were the consequences of shock therapy, what happened after this the political happenings in these 15 republics of USSR. ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस व्हाट वाज सोवियत सिस्टम. हमें सबसे पहले in order to understand the reason, in order to understand the disintegration of USSR, we need to understand the reason behind disintegration, है ना? And in order to understand the reason behind the disintegration, we need to understand the Soviet system. हमको उसके लिए सोवियत सिस्टम को समझना होगा. ठीक है, तो सोवियत सिस्टम क्या था? We have discussed about it in the previous chapter also, when we discussed like in 1917, October 1917, a revolution takes place in Russia, which the revolution was against the exploitative rule of Tsar. With this revolution, the exploitative rule of Tsar comes to an end, and what happens in Russia, that socialism was implemented in Russia after revolution. It was for the first time that an ideology was practically implemented in our country.
It happened for the first time. And this is the importance of the Russian Revolution, October Revolution of Russia of 1917. Marx, who has given this ideology of socialism, which is also known as Marxism, according to Marx, there is the main reason behind the gap between the rich and the poor is private property. If a society is divided into two classes, that is rich class and poor class, this division of class is existing only because of the existence of private property. If we want to bring equality, what is the need? If we want to bring equality, there should not be any class division. Rich class, poor class, any such divisions should not be there. And if we want that class division should not be there, how it can be achieved? It can be achieved through what? Through the end of private property. So it was the opinion of Marx that if in a society the gap between the rich and poor is existing, that is because of the existence of the institution of private property. So in order to make a society egalitarian, what is the need? The need is to end the institution of private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन को एंड करना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मार्क्स. ठीक है, तो मार्क्स की इसी कॉन्सेप्ट को यूएसएस रसिया, जो कि रेवोल्यूशन के बाद जो रसिया थी, जो कि लेनिन के लीडरशिप में, जिसमें रेवोल्यूशन हुआ था, जार के रूल का एंड हुआ था, उस रसिया में सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया और इस सोशलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया. सो ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसको कि कॉन्शियसली द सोसाइटी इज डिजाइन्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, और जब हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो इन सच टाइप ऑफ सिस्टम वी आर बाउंड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू स्टेट. ऐसे जगह पे जहां पर कि हम कह रहे हैं कि लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इक्वालिटी लाना है, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना है, तो वैसी सोसाइटी, वैसी कंट्री में स्टेट विल बिकम मोर पावरफुल. If we consider the relationship between the individual and the state, what we will find that the state is more powerful in a socialist country than the individual, because the main focus of the whole system is to bring equality in the society, and equality is something which is unnatural. We can say नेचुरली इनइक्वालिटी ही प्रिवेल करती है. तो अगर हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं तो उसको हमें ऊपर से इम्पोज करना होगा. वी हैव टू इम्पोज इक्वालिटी, एंड हु इज गोइंग टू इम्पोज दिस इक्वालिटी? दिस इक्वालिटी विल बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट ओनली. ठीक है, तो ये इक्वालिटी जो है वो स्टेट इंपोज करेगी, तो ऑब्वियसली स्टेट विल बिकम मोर पावरफुल, एंड दैट हैपेंड इन द सोशलिस्ट कंट्री. यही हुआ, जो सोशलिस्ट कंट्री की हम बात कर रहे हैं वहां पर यही हुआ कि स्टेट जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए. ठीक है, और इसी के साथ साथ एक चीज और हम देखते हैं कि स्टेट तो पावरफुल बना, अब स्टेट के पावर को यूज कौन करता? हु यूजेस द पावर ऑफ द स्टेट?
द पावर ऑफ द स्टेट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। स्टेट के पावर को गवर्नमेंट यूज करती है ना। तो जब स्टेट के पावर को गवर्नमेंट यूज करेगी और स्टेट इज वेरी मच पावरफुल, देन ऑब्वियसली दिस पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल बिकम वेरी मच पावरफुल। तो यही हुआ, ठीक है। यूएसएसआर के अंदर स्टेट बहुत पावरफुल बना, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल बनी, और गवर्नमेंट के अंदर भी एक सिंगल पार्टी जो थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनी, एंड दिस पार्टी वाज द कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई। पूरी की पूरी, अगर हम कहें कि सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो किसके चारों तरफ घूमता था, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही चारों तरफ घूमता था। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड देयर वाज द सिस्टम ऑफ single party system. It means ki only one party will be there will not be more than one party, and whenever single party system is adopted, that leads to the end of democracy, because single party system के अंदर क्या होगा, lack of accountability होगा। The government will not be accountable because there will not be any kind of fear in the mind of the government that if it does anything against the desire of the people, against the interest of the people, it can be overthrown by the people, because people have no option. लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसी और को चुन सकते हैं, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो अडॉप्ट किया गया, एंड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोमेटिकली लीड्स टू अ क्लोज्ड सोसाइटी। जब हमारी पॉलिटिकल सिस्टम क्लोज्ड है, जहां पर कि सिंगल पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो सोशल सिस्टम होगा, या हम कहें जो हमारी सोसाइटी होगी, दैट विल ऑल्सो बी अ क्लोज्ड सोसाइटी। बिकॉज जब डेमोक्रेसी नॉमिनल है, जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज देयर, पीपल हैव नो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इट मीन्स कि पीपल हैव नो राइट to go against the government, people have no right to express their dissent, people have no right to protest against the policies of the government, people have no right to express their feelings through any kind of medium. So these are the implications, these are the consequences of having a closed political society. जैसे political system, the moment we adopt a closed political system, it leads to a closed society. एक क्लोज्ड पॉलिटिकल सिस्टम में एक ओपन सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही सोसाइटी ओपन होगी ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू द ओपननेस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और जैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम क्लोज होता है वैसे ही सोसाइटी भी जो है वो क्लोज हो जाएगी। उसको कोई भी क्लोज होने से मतलब रोकने, ये नेचुरल, दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक की आज़ादी, अगर एक आज़ाद है तभी दूसरा भी आज़ाद होगा। अगर समाज में आज़ादी दी जा रही है तो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपने आप आज़ाद हो जाएगी। अगर राजनीतिक व्यवस्था में आज़ादी दी जा रही है तो समाज अपने आप आज़ाद हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये सिस्टम, ये दिस काइंड ऑफ system was prevailing in USSR. And if we talk about economy, about which we have discussed in the first chapter itself, that the economy was also closed. In such societies, what we find that the economy is under the control of the government. The economy which is adopted in these kind of socialist countries is called planned economy. They do not go for market economy, they go for planned economy. Market economy, it means कि market forces are doing the role, they are the prominent factors,
The individuals are free to do any kind of economic activities. They can go for any kind of contract and all. Competition is free and fair. It is open for all, है ना. ये चीज़ें होती हैं जबकि इकोनॉमी जो होती है वो ओपन होती है, प्राइवेट ओनरशिप होता है. बट एक सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर प्राइवेट ओनरशिप नहीं है. एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमी है दैट इज कम्प्लीटली इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी. जो कुछ भी होना है उसकी प्लानिंग की जाती है. ठीक है. तो इस तरह से अगर हम तीनों एस्पेक्ट देखते हैं, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, वी फाइंड दैट इन अ सोशलिस्ट सिस्टम ऑल दीज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आर क्लोज्ड. Okay, and now we will see that what happened after the Second World War. After the Second World War, we have seen that these two superpowers emerged. One was US and another was USSR. And what happened that the East European countries were under the control of the fascist forces like Italy, Germany. Italy and Germany, they were the fascist forces. They were the Axis. They were the countries who were against the Allied powers, Axis powers, है ना. हमने we have discussed about it जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसमें क्या होता है, एक तरफ अलाइड पावर्स होते हैं और दूसरी तरफ एक्सिस पावर होते हैं. अब ये अलाइड पावर्स में कौन है? अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, यूएस, यूएसएसआर, नॉट यूएसएसआर, ब्रिटेन, यूएस, यस यूएसएसआर, all these countries, France, all these countries were in allied powers. UK, US, USSR, France. और एक्सिस पावर में कौन थे? जापान, जर्मनी, इटली. जर्मनी, जापान, इटली, all these were इन द एक्सिस पावर. तो क्या हुआ कि जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थे उन सब पे जर्मनी ने अपना कंट्रोल कर लिया था. इटली ने भी कुछ टू सम एक्सटेंट, दीज कंट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ इटली ऑल्सो. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर ने क्या किया, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे जो कि जर्मनी और इटली के कंट्रोल में थे, उनको उस फासिस्ट फोर्सेस से उसने आज़ाद कराया. ठीक है. और जब उसने यूएसएसआर ने इनको आजाद कराया, कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, ये कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, इनको यूएसएसआर ने जर्मनी और इटली के कंट्रोल से आज़ाद कराया. और जब इनको आज़ाद कराया तो फिर क्या हुआ, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दीज कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर. ठीक है. और ये सारी कंट्रीज जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ऑल दीज कंट्रीज adopted the same model of politics, economy and society, that is socialism. ठीक है. तो यूएसएसआर ने इन कंट्रीज को फासिस्ट फोर्सेस से फ्री कराया और उसकी जो कीमत थी वो ये हुई कि इन सब कंट्रीज ने उसी पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया, उसी इकोनॉमिक सिस्टम को, उसी सोशल सिस्टम को अडॉप्ट किया जो यूएसएसआर में थी, यानी कि सोशलिज्म. ठीक है. और इस तरह से ये एक अलग ग्रुप बन जाता है. ये जो ग्रुप है जो कि हम कह रहे हैं कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, जो कि सोवियत यूनियन से ही इन्फ्लुएंस होकर के उनके ही जैसे सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सोशलिस्ट ब्लॉक. दे वर कॉल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक. ठीक है. इनको
सोशलिस्ट ब्लॉक कहते हैं, और यही वो कंट्रीज हैं जिन्होंने वॉर्सो पैक्ट पे साइन किया था 1955, है ना। दीज आर द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप आर द कंट्रीज हु साइंड ऑन वॉर्सो पैक्ट। एंड इस वॉर्सो पैक्ट का जो लीडर था वो कौन था? द लीडर वॉज यूएसएसआर। तो सोवियत यूनियन जो था, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत ही बड़ा पावर बन जाता है, यूएस के बराबर का पावर बन जाता है। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि यूएस और यूएसएसआर ये दो सुपर पावर्स जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आते हैं, है ना। और सोवियत इकोनॉमी जो थी वो सिर्फ अगर यूएस को छोड़ दे तो बाकी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के कंपैरिजन में सोवियत इकोनॉमी जो थी वो ज़्यादा डेवलप कर चुकी थी। तो सबसे ऊपर जो थे वो यही दोनों थे, यूएस एंड यूएसएसआर, इकोनॉमी की अगर हम बात करें। अब अगर हम सोवियत सिस्टम पर ही हम फोकस करेंगे इस समय, तो जो सोवियत सिस्टम था उसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि जो यूएसएसआर है वो बहुत ही बड़ा है। अगर टेरिटरी वाइज देखें तो यूएसएसआर इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी कंट्री है पूरी दुनिया में, है ना। तो ये इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क तो बहुत कॉम्प्लेक्स था ही साथ इसके पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि ऑयल हुआ, है ना, एनर्जी के लिए ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे फिर आयरन एंड स्टील है, इन सब का ट्रेजर इसके पास बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो it had a complex communications network, then it has also vast energy resources including oil, iron and steel, and not only this, we see that it was also leading in transport sector, because as I told you कि टेरिटरी बहुत बड़ी थी, और सिर्फ बड़ी नहीं थी बल्कि डाइवर्सिटी, ऑल काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। अगर नॉर्दर्न यूएसएसआर को हम देखें तो वो नॉर्थ पोल को टच करता है। साइबेरिया का जो रीजन है वहाँ पर इतनी हर समय वो बर्फ से ढका हुआ स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं। तो ये जो नॉर्थ पोल के एरियाज हम देख रहे हैं जो कि साइबेरिया वाला, वहाँ पर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बनाना, कनेक्ट करना, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से इन्होंने किया। किसी भी चीज़ में कोई भी जिसको कहें कि ऑब्स्ट्रक्शन इनको रोक नहीं पाया, ठीक है। एंड नॉट ओनली दिस, इनके पास एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री था, और ये जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री था वो सब कुछ प्रोड्यूस करता था। क्या सब कुछ? फ्रॉम पेन्स टू कार, मतलब नथिंग वॉज नीडेड टू बी इम्पोर्टेड। इम्पोर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हर कुछ, चाहे वो छोटी से छोटी एक सेफ्टी पेन से लेकर के कार तक जो है वो कंट्री में ही प्रोड्यूस होता था। हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम जरूर आई कि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इनकी बैकवर्ड थी, बिकॉज दे यूज्ड टू बी अलूफ from the outer world, and because of this aloofness what happened that कि क्वालिटी में थोड़ी सी कमी आती थी, बट दे बिलीव्ड इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग, दे डिड नॉट बिलीव इन इम्पोर्टिंग एनीथिंग, ठीक है। तो वो सब कुछ अपने ही अंदर ही प्रोड्यूस करते थे। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सोवियत सिस्टम, जो कि we know that the system was based on egalitarian society. The aim was to make the society egalitarian. So what was done by the system, that a minimum standard of living was ensured for all citizens. कम से कम एक जो मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो जरूर लोगों को अवेलेबल कराया जाए, लाइक जो फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, मेडिकल है, एजुकेशन, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सबको दी जाए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ इसको हम कहेंगे। अगर हमने जब सोशल जस्टिस को हम डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर बुक 1, बुक 2
इन क्लास 11th, तो हमने देखा था सोशल जस्टिस का यही मतलब होता है कि एटलीस्ट जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट by each and everyone in a country, and that was done in this socialist system. ये जरूर किया जाता था कि सबको जो जिसको हम कहेंगे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको अवेलेबल कराया जाए, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पे सबको एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ही सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबके लिए एक था। ये नहीं, हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। अब गवर्नमेंट में वी विल गेट द सर्विस एट अ वेरी लोअर कॉस्ट, दैट विल बी इक्वल टू नो कॉस्ट, है ना, बट द सर्विस, द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज नॉट गुड, है ना। तो हम क्या करते हैं, इफ वी कैन अफोर्ड वी गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बट वहां पर क्या है, वहां पे प्राइवेट है ही नहीं। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट hospitals, private educational institute, nothing is there. Everything is in the control of the government. चाहे वो कोई भी हो, सबको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज ही अवेल करनी है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी which was adopted in the Soviet system, है ना। इस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, चाइल्ड केयर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, इवन जो ओल्ड एज में लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको भी गवर्नमेंट फुलफिल करती थी। और एक चीज़ और थी कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी, क्योंकि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया था, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, यानी कि दे कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड। ये सरकार का, ये गवर्नमेंट का, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड दोज हु हैव द क्वालिफिकेशंस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस मिलते थे, सो दैट दे कैन बी एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर हम देखते हैं। इसके अलावा स्टेट ओनरशिप जो था वो था, सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे कंट्री के, देवर इन द control of the state, they were in the ownership of the state owned and controlled all the land and productive assets of the country, ठीक है। तो ये सोवियत सिस्टम के फीचर्स हैं, जिसको अगर हम देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। जैसे कि वी एक्सपीरियंस दिस इन आवर कंट्री कि द पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ, दे आर नॉट एबल टू गेट food, enough food, they are not able to get proper shelter, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारी जैसे कंट्री में है, बट वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। जो पुअर हैं, पुअर रिच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एवरीवन वाज इक्वल, सबके बेसिक नीड्स पूरी तरह से अच्छी तरीके से पूरे किए जा रहे थे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, दीज आर द वी कैन से पॉजिटिव एलिमेंट्स, बट एट द सेम टाइम देयर वर प्रॉब्लम्स also in this system. And now we will see what were the problems in this system. So what we find that the concept was very good, but when this concept was implemented, what happened that the system became very bureaucratic. The bureaucracy, who are the bureaucrats? The permanent executives. You have read this in class 11th. जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। देखो, दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, एक तो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारे लीडर्स होते हैं, जिनको हम इलेक्शंस के थ्रू, वोटिंग के थ्रू जिनको हम चुनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी। उनको जनरलाइज नॉलेज होता है, पूरे के पूरे चीज़ों को साथ लेकर वो चलने वाले होते हैं। दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि हर 5 ईयर्स पे फिर से इलेक्शन होता है, फिर से बदलते हैं। और दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि अपने टैलेंट के दम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू जो आता है, अचीव करता है। तो ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक्चुअली दे आर देयर टू इम्प्लीमेंट द वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने वाले यही परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और इन्हीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को हम ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं। और जब भी गवर्नमेंट स्टेट पावरफुल बनेगा
तो स्टेट का वो पावर विल ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट्स पावर विल ट्रांसफर टू द ब्यूरोक्रेट्स। तो वही हुआ सोवियत सिस्टम के अंदर कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए। इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।